students, how are you all? Welcome to today's class. Today's topic is the concept of computer networking. In the previous classes, you have studied a lot about the largest network of the world called Internet, which is considered as the best mode of communication nowadays. But what does this term network means? Network means arrangement of things. We are familiar with the various type of networks which makes our life easier, like railway network, postal network, road network, telephone and mobile networks. You cannot imagine life without networking. No phone, no television, no internet, etc. Computer networks have extended the power of computer beyond the expense of a room. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटरनेट के बारे में तो पढ़ चुके हैं. इंटरनेट जो है आपका लार्जेस्ट नेटवर्क माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो नेटवर्क टर्म है इसका मतलब होता क्या है? तो नेटवर्क का मतलब होता है आपके चीज़ों का जो अरेंजमेंट होता है वही नेटवर्क कहलाता है. आप फेमिलियर हैं काफ़ी वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क से, ठीक है, जैसे कि आपका रेलवे नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क है. इनके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते. कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये एक्सटेंडेड पावर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ अ रूम. नाउ नेटवर्किंग. A computer network is made up of multiple connected computers and other computing devices that communicate over a wired or wireless medium to share their information and resources with each other. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, etc. Thus, when multiple computers and other devices are interconnected through a wired or wireless mediums to share information and other resources, it is called a computer network. In a network, connected computers can communicate with each other as well as they can also work independently. Each computer in a network is called a node. तो नेटवर्किंग के बारे में जान लेते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये आपके मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर से बना हुआ है और अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस से ये बना हुआ है जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वायर्ड और वायरलेस मीडियम के थ्रू, और ये साथ ही साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं. अपने रिसोर्सेज को भी एक दूसरे से शेयर करते हैं. जो कंप्यूटर है ऑन नेटवर्क ये थ्रू केबल्स के द्वारा, टेलीफोन लाइंस के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा और सैटेलाइट के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. इसलिए मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस जो होते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू वायर और वायरलेस मीडियम, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें. तो ये जो नेटवर्क है यही आपका कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है. किसी नेटवर्क में जो आपके कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वो एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं और इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाते हैं. हर एक कंप्यूटर जो आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होता है वो आपका नोड कहलाता है. Advantage of networking. Following are the advantages of computer networking. Information sharing. Information stored in the network computers can quickly and easily be shared among each other. This allows the timely updation of critical information being used by the other on the network. Resource sharing. Computers connected to a network can share resources, equipments and devices including printers and hard drives. So in an office where hundreds of computers are working, network facility saves a huge cost of providing individual resources to the individual computers. Communication and networks make it possible for people to communicate with each other even when they are present at different geographical locations. Preserving information, it is difficult to maintain the regular backups on a number of standalone computers. When you keep backup on a central location, you have one place to look for the lost information. Scalability, a network can be easily expanded by bringing in more computers as and when required. Reliability, a critical task can be shared between multiple computers such that even if a couple of computers go down, the task is not stopped but is simply taken up by the other computers.
Security of data. Networks ensure greater security of stored data by enforcing authenticity and authorization rules for the users. तो नेटवर्किंग के एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो एक नेटवर्क कंप्यूटर में स्टोर होती है वो इजीली आप दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, आपका जो कंप्यूटर है वो आपको दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड कराता है। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को भी इजीली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर पाते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। जैसे आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा, आपके 100 ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप अपने ही टेबल पे बैठे, अपने कैबिन में बैठे, आप चाहे तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे किसी भी आपके एम्प्लॉय से या आपके कलीग से आप कोई भी डेटा या रिसोर्स आप मंगवा सकते हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, अब आपका जो नेटवर्क होता है ये लोगों के लिए इजी बनाता है कि वो इजीली एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे आपका कभी कभी क्या होता है, आपके लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है आपके लिए एक ही कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आपका एक ही कंप्यूटर जो होता है वो कभी कभी स्टैंड अलोन उसको नहीं सपोर्ट कर पाता। तो जब आप बैकअप लेते हो सेंट्रल लोकेशन पे तो वो आपका एक प्लेस में आपकी जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसका वो क्या कर लेता है, बैकअप ले लेता है। स्केलेबिलिटी, आपका जो नेटवर्क है वो आपको इजीली एक्सपेंड कर दिया जाता है बाय ब्रिंगिंग इन मोर कंप्यूटर्स एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। रिलायबिलिटी होती है, कोई भी क्रिटिकल टास्क जिसको आप शेयर करते हो बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे आपके जो कपल ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, बहुत स्लो वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। कुछ टास्क जो है वो वहाँ पे लिया जाता है या वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ताकि ये चीज़ जो है वो कम हो सके। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, नेटवर्क जो होता है ये आपको इंश्योर करता है कि आपके डाटा की जो है वो सिक्योरिटी रहेगी और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बरकरार रहेगी। नेटवर्किंग हार्डवेयर, networking hardware for wired network includes the physical components that work together to create a network. All computer network require at least the following hardware: network interface card NIC, also known as LAN card or Ethernet card, is the most important component of the networking hardware. It provides a hardware interface between the network and the computer. It connects a computer to a cable which in turn links all of the computer on the network together. Information from the computer is transmitted through an IC connected on the motherboards of CPU. Second, networking cable. Wired network cables are used as communication channel to connect the various network devices and to transmit data between them. Different kinds of cables such as coaxial cable, twisted pair cable, fiber optic cable are used depending on the type and size of the network. The type of a cable used often determines the speed of the network. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे NIC के बारे में, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। इसे आप लैन कार्ड या फिर ईथरनेट कार्ड भी कह सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके नेटवर्किंग हार्डवेयर का। ये आपको प्रोवाइड करता है एक हार्डवेयर इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क एंड द कंप्यूटर। साथ ही साथ ये आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है केबल के साथ, जो कि आपको अदर कंप्यूटर्स के साथ लिंक करती है ऑन द नेटवर्क टुगेदर। इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द कंप्यूटर वो ट्रांसमिट की जाती है थ्रू NIC कनेक्टेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द CPU। इसमें आपके नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग केबल्स। इसमें आपकी जो वायर नेटवर्क केबल होती है वो यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर, जो कि आपके वेरियस नेटवर्क को कनेक्ट करती है डिवाइस के साथ। साथ ही साथ आपका जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करती है दो कंप्यूटर के बीच में। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ केबल जो होती है उसको यूज़ किया जाता है और ये डिपेंड करती है उनके नेटवर्क के साइज़ पर, ठीक है। It is low-cost cable used for joining computers in a network. It provides a fair data transmission speed. These cables provide better transmission speed than twisted pair cables.
These cables are thin hair like glass cable where data is carried through the light pulse at a very high speed. तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की आपको केबल्स दिखाई गई हैं और उनके यूजेस के बारे में आपको बताया गया है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये आपकी लो कॉस्ट केबल मानी जाती है, जिसमें आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक नेटवर्क पे ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉक्शियल केबल्स जो होती हैं ये आपके बेटर ट्रांसमिशन और स्पीड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं ये काफ़ी थिन हेयर लाइक ग्लास केबल्स होती हैं, जहाँ पे आपके जो डेटा है उसको कैरी किया जाता है थ्रू लाइट पल्सेस। Now third, hubs and switches. Hubs and switches are boxes to which computer, printers and other networking devices are connected. Their function is to direct information around the network, facilitating communication between all the connected devices. Hubs were the preferred medium in earlier times, but now switches are used because of their efficiency. A switch is often termed as a smart hub. Each computer on a network is connected to the hub switch via Ethernet cable. Fourth, network operating system (NOS). A network operating system contains components and programs that allows a computer to serve requests from other computer for data and other resources such as printer and file system. Example of NOS are Windows NT, Windows XP, Windows 2000, Linux, Network DS2 etc. तो इसमें थर्ड हम बात करेंगे हब्स एंड स्विचेस के बारे में। हब्स एंड स्विचेस आपके बॉक्सेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर, प्रिंटर, अदर नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनका फंक्शन होता है आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अराउंड द नेटवर्क, साथ ही साथ आपको फैसिलिटेट करते हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर सको बिटवीन 2 कनेक्टेड डिवाइसेस। हब्स जो होते हैं ये आपके प्रीफर्ड मीडियम होते हैं इन अर्लियर टाइम्स, लेकिन ये जो स्विचेस होते हैं ये आजकल यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव माने जाते हैं हब्स से ज़्यादा। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको हम NOS भी कहते हैं, ये आपके कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कंटेन करते हैं एंड आपके प्रोग्राम्स को भी ये अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, कंटेन करके रखते हैं ताकि आपके कंप्यूटर को एक बेटर रिक्वेस्ट जो है वो सर्व की जा सके। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. There are various types of computer networks depending on the geographical area covered by a network. There are various types of computer networks which are as follows. Personal area network PAN. PAN is a computer network that is mainly created for an individual person to connect a laptop, a cell phone and or a handheld computing device such as PDA or smartphones. PAN can be either wired or wireless. The area of PAN is typically a few meter. तो हम जान लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं इनके जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पे वो ये कवर करते हैं और जहाँ तक ये अपनी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं या फिर उस एरिया में ये कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिन्हें हम PAN भी कहते हैं। ये पर्सनल इसलिए होते हैं क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए ही इन्हें यूज़ किए जाते हैं और इनका जो दायरा होता है काफ़ी लिमिटेड होता है। मतलब आप एक घर के अंदर एक PC में ही आप सिर्फ इससे कनेक्ट कर सकते हो या बस आप अपनी जितनी रेंज होगी उसी रेंज के अंदर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो दायरा होता है वो टिपिकली फ्यू मीटर्स का ही होता है। नाउ लोकल एरिया network. LAN or local area network is a network of 2 or more computers and peripheral devices within a small area like a room, a office, a building or a campus. The computer in a LAN are connected through Ethernet cables. Usually this type of network does not consist of more than 100 computers. Since LAN is operated in small areas, the communication speed is good, chance of data loss are very less and it can be controlled by a single person or an organization. तो लोकल एरिया नेटवर्क LAN जो होते हैं ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें आप एक छोटे से प्रेमाइसेस या आपका जो ऑफिस है या बिल्डिंग है वहाँ पे आप इनमें नेटवर्क्स को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, अपने डेटाज वगैरह को आप शेयर कर सकते हो।
अब इसमें आप लिमिटेड एरिया में आप इसे यूज़ करते हो तो इसमें आपकी जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें डेटा लॉस के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन इज़ अ larger network than LAN. It is also a collection of local area networks. This network connects computers located in the same geographical area such as a city or town. The cost involved in setting up a MAN is more than LAN. The most common example of MAN type network is cable television branches of a local bank in a city. अब हम बात कर लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। ये आपके जो दोनों आपके प्रीवियस नेटवर्क थे पैन एंड लैन, ये उससे बड़े होते हैं, ये आपके एक एरिया को कवर करते हैं। जैसे आपके जो केबल टीवी प्रोवाइडर होता है वो आपके पूरे एरिया के घरों के जितने भी केबल्स होते हैं या जो टीवी होते हैं, जो भी आपका नेटवर्क होता है उसको वो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से ये काम भी करता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन। A WAN is a computer network that spans over large geographical areas such as a country or even over in continental distance. A WAN is a geographically dispersed collection of smaller networks like LANs, MANs and CANs. Because of a large distance covered by WAN, the data transfer rate is slower and the chance of data transfer error are more as compared to LAN. The usage of WAN is limited to very large organizations and government agencies. Railway reservation system, airline reservation system and ATMs are good examples of WAN. The largest and well-known example of WAN is the internet. WAN के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका लार्ज एरिया में फैला हुआ है, जैसे कि आपकी कंट्री है, ऐसे एरिया में फैला हुआ ये एक कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। इसके अंदर आपके सारे नेटवर्क आ जाते हैं, लैन भी आ जाता है, मैन भी आ जाता है एंड कैन भी आ जाता है। हालांकि लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है, लार्ज एरिया को ये कवर करता है, तो इसका जो स्पीड होती है डेटा की ट्रांसफ़र की वो काफ़ी स्लो हो जाती है और डेटा लॉस के भी इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जो यूसेज ऑफ वैन है ये लिमिटेड माना जाता है कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू। ठीक है, इसे हर कोई नहीं यूज़ कर सकता, इसकी अथॉरिटी जो होती है वो किसी किसी को ही दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज को दी जाती है, कुछ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ही दी जाती है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम, ये सब वैन नेटवर्क ही यूज़ करते हैं। Now, do you know a campus area network CAN is a network made of an interconnection of two or more LANs within a limited area. तो आपका जो CAN नेटवर्क है ये आपके इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर LAN से बना हुआ है एक लिमिटेड एरिया के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजीज। Network topology is referred to as the layout in which various computers are connected with one another in a computer network. There are three basic network topologies. These are bus topology, star topology, ring topology. Bus topology. In a bus topology, a single continuous cable is used to connect all the computers and other devices in a network. This cable is called bus, which is a single continuous cable. Bus carries the data to and from each one of them to all others. In this topology, only one device can transmit at a time. Thus, bus has terminators at either ends which absorbs the signal, removing it from the bus. Advantage of bus topology, disadvantages of bus topology. It is economical and easy to set up. It offers limited flexibility for change. It is easy to extend because of short cables. It is less reliable. Failure of one node does not affect the rest of the network. A signal on the bus must be strong enough to reach the receiver. तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? ये एक लेआउट होता है जिसमें आपके वेरियस कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपके थ्री बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं जो कि आपकी बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है एंड रिंग टोपोलॉजी है, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में।
बस टोपोलॉजी में आपका सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल यूज़ की जाती है जो कि आपके बाकी कंप्यूटर से इस तरीके से कनेक्टेड होती है कि वो ऐसा दिखता है कि वो बस की तरह है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक हब से आपका जो वायर्स होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है। ये जो बस होती है ये कैरी करती है आपके डेटा को टू एंड फ्रॉम ईच वन ऑफ ऑल द अदर्स। इस टोपोलॉजी में आपका जो एक डिवाइस होता है वो ट्रांसमिट होता है एट अ टाइम, ठीक है। बस जो होते हैं इसमें आपके टर्मिनेटर्स होते हैं ईदर एंड में, जो कि आपके सिग्नल को अब्जॉर्व करते हैं और उसे रिमूव करते हैं बस से। अब यहाँ पे आपको बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं। एडवांटेज क्या है, ये इकोनॉमिकल है और इजी टू सेटअप है, साथ ही साथ ये इजी टू एक्सटेंड है बिकॉज ऑफ शॉर्ट केबल, और इसमें जो आपके फेलियर ऑफ वन नॉड हैं वो अफेक्ट नहीं करते आपके रेस्ट ऑफ द नेटवर्क को। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी ऑफर होती है, मतलब उसको आप बहुत ही कम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लेस रिलायबल होता है और जो आपके सिग्नल होते हैं बस में वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कभी कभी रिसीवर तक रीच करने में। Star topology. In a star topology, all the computers are connected to a central device called hub or switch. All the information pass through the hub or switch before it can be transferred to the destination. Advantages of star topology, disadvantages of star topology. It is highly dependable because the failure of one system does not affect the whole network. Hub or switch is a very crucial device in this topology. Failure of this device can stop the working of whole network. Fault can easily be detected at the central hub. It has minimal line cost. It is difficult to expand because there are more chances of error in long cable. स्टार टोपोलॉजी ये इस तरीके की दिखती है, जैसे एक स्टार पे जो आपके नेटवर्क्स होते हैं कंप्यूटर के वो फैले हुए होते हैं। इसमें आपकी ऑल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हब के थ्रू और स्विच के थ्रू पास की जाती है बिफोर इट कैन ट्रांसफ़र टू द डेस्टिनेशन। अब इसके भी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। ये हाईली डिपेंडेबल होती है क्योंकि आपका जो वन सिस्टम का जो फेलियर होता है वो अफेक्ट नहीं करता होल नेटवर्क को। साथ ही साथ इसमें जो फॉल्ट्स होते हैं उनको आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हो सेंट्रल हब में, और ये आपकी काफ़ी मिनिमल लाइन कॉस्ट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हब और स्विच जो होता है ये काफ़ी क्रूशल डिवाइस होता है टोपोलॉजी में। अगर ये फेल हो जाता है तो आपका जो होल नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देता है। साथ ही साथ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड होता है क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा एरर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं लॉन्गर केबल्स में। Now ring topology. In a ring topology, the computers are connected with each other in a closed loop so that each device connected to two other devices, one on either side forming a kind of ring. Data travel only in one direction in a ring. Each system can pass data to its adjacent system. Advantages of ring topology, disadvantages of ring topology. It is very much cost effective because of short cable length. It is difficult to detect the fault. It works well where there is no central site computer system. It is less reliable because data travels through each computer. Failure of a system can cause the network failure. रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से आपको दिख रही है, ये रिंग की तरह होती है, राउंड ये फिगर में होता है, ठीक है। इसमें आपका एक कंप्यूटर जो होता है ये आपके दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, एक से ये इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। तो आपका जो राउंड आपका मैनर में आपका ये सब चल रहा होता है, आपका डेटा वगैरह जो है वो शेयर हो रहा होता है। अब इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है ये काफ़ी कम होता है क्योंकि इसमें आपकी जो केबल लेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और इसमें आप वर्क इजीली कर पाते हैं। यहाँ पे आपका कोई सेंट्रल साइड कंप्यूटर नहीं होता क्योंकि एक इस फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है, तो एक सेंटर में कोई भी कंप्यूटर इसमें नहीं होता। एंड इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना, और ये लेस रिलायबल होता है, ठीक है। इसमें आपका जो डेटा ट्रैवल करता है वो आपके ईच कंप्यूटर से ट्रैवल करता है, तो अगर आपका एक सिस्टम भी फेल कर जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये आपके नेटवर्क फेलियर को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है,
काउज करता है. Let us rewind. Computer network refers to an interconnection of two or more computers so that they can share resources. A network can improve your work by increasing productivity, lowering the cost, and much more. PAN, LAN, MAN, and WAN are the types of network on the basis of geographical area. The basic components of a wired network are cables, network interface card, hub or switch, and networking operating system software. Bus, star, and ring are the three type of network topologies which defines the physical layout of the network. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.